सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का है क्या है लेटर आर्टिकल? Ramakrishna and his divine play according to Swami Sardananda. Yes. My master according to Swami Vivekananda, chapter 21 and 22. Okay, okay. 21 and 20. No, 21 and 20. Swami Ramakrishna Sardananda and about 22. My master, Swami Vivekananda. Okay. Bye, Swami. तो हम शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? कोई समरी करेगा इसके? महाराज जी मैं कर रहा हूँ समरी आज। अच्छा ठीक। अब जब बोलेंगे शुरू करेंगे महाराज। मैंने कर दिया ना। ओके सहना भवतु हो गया। जी महाराज स्टार्ट करें। प्रणाम महाराज जी। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। Today we will be talking about the two topics that was just mentioned, Ramakrishna and his divine play according to Swami Sardananda and my master according to Swami Vivekananda. Now, in the first part, we will see how Leela Prasanga's writing was started and finally what one finds in Leela Prasanga. Briefly about Swami Sardananda, he was born in an affluent family in Calcutta in 1865. He met Sri Ramakrishna for the first time in 1883. And on being asked by Thakur at some time what he desired most, he said, I want to see God in all beings. Thakur said, that is the ultimate. After Thakur's passing away in 1887, he took his monastic vows under the leadership of Swami Vivekananda. Later, when Swamiji was in US, in 1893, he asked for the help of Swami Sardananda in the year 1896, after he had already spent 3 years there. So at that time, he was in England, so he asked him to come over. So Swami Sardananda went to England first, and on Swamiji's direction, later left for America and did a lot of preaching there. Then after coming back from America in 1897, Swamiji, after having formed the Ramakrishna Mission, he made Swami Sardananda the secretary of Ramakrishna Mission. And he remained the secretary of Ramakrishna Mission for 30 long years, right up to 1927 when he finally passed away. This was a brief sketch. We are not going into the details of Swami Sardananda's life, so I will go right into the Leela Prasanga, how it all started. So Leela Prasanga or the divine play was started, or rather he started writing it in the year 1909, and that was almost after 23 years of Master's passing away. Yes. Leela Prasanga is the most comprehensive, authentic, and critical estimate of the life, sadhana, and teachings of Thakur. This was said by Swami Kailashananda in the year 1952 when the English version came out, where after the translation by Swami Jagadananda. Swami Sardananda gave several reasons for undertaking this writing of Leela Prasanga. The first was to repay the money that he borrowed to build the house in Calcutta for Sri Sharda Devi, and also to publish the Bengali magazine Udbodhan, which was earlier started by Swami Vivekananda.
Secondly, he wanted to publish an accurate account of the master's life, where no untruths could be published. It had to be absolutely truthful. Thirdly, of course, was a similar thing when he said he wanted to write a flawless biography which showed no miracles and exaggerations. Fourth, he also wanted to fulfill desires of many in the West who wanted to hear about Thakur, how his life was, and the meeting point of all sects and the harmony of religions. They were hungry to know about all that, the West. Fifth, he wanted to justify the philanthropic activities of Ramakrishna Mission and to clarify how human beings can be served as God. Shiv Gyane Jeev Sheva. So how it can be done practically and how it was the correct thing to do. Even someone like Master Mahashai remained in the dark about this concept till almost 1912 when Holy Mother removed his wrong impression at Varanasi. Swamiji, who had been earlier asked to write about Thakur, refused, as we know, and said Sharat will write. Later, even Girish advocated it, lest in the future a less competent person may write one and defeat the purpose of this incarnation. Yeah. Leela Prasanga came out in 5 volumes. He wrote the third first, then the fourth, and then the second, first, and the fifth volume. His reasoning for writing the third volume first was to make sure people understood how Thakur remained in Bhavamukha and to better understand his unprecedented mental states or moods, his wonderful character, his activities. Because people had to understand Thakur first before they could, read the rest of the narrations about his whole life. Most important of all, he started to write only after he received the blessings of Holy Mother. Even the manuscript which he had written would be first read out to her at Calcutta, or if she was in Jairambati, it was read out to her in Jairambati. He used to write with utmost concentration, even in the most adverse conditions. In that small room in Udbodhan, sitting long hours with very austere conditions, and sometimes with so much noise around, he would just continue writing from morning till evening and become very stiff. The whole body would be very stiff, but he would continue to write. And when he was asked that doesn't he get disturbed, he says, no, I don't even hear what is going on. Such was his concentration. And he did not write anything, he says, until he got the Lord's command. Regarding the chapter on Samadhi, he said, I have not written anything about Samadhi that I have not experienced myself. What a tremendous thing to say. Who can say this except a Thakur's disciple? This biography is so unique among the spiritual literatures. Nowhere can we find such detailed accounts, even on Krishna, Buddha, or Christ. He wanted to write a 6th volume titled Sri Ramakrishna in Kaushikpur. But somehow, after Holy Mother's passing away, he seemed to lose that inner strength to write. That is what he said. However, some notes which he had made was found and later published. Now, what do we find in Leela Prasanga? Other than the description of the God-intoxicated state of Sri Ramakrishna, we find the following: glimpses of mysticism, discussions on various religious and philosophical traditions in India, accounts of different religious leaders, description of social customs and socio-religious movements of the 19th century India. It's almost historical. How the avatar of the modern age lived, how he behaved, how he practiced sadhana. Now, these are very important things because this is not mentioned in any of the previous avatars. We don't know
how the other avatars practiced sadhana, but here we get a detailed account. How he taught spirituality, how he evaluated and trained his disciples, how he used parables and folk tales to accentuate his teachings. Lastly, but not the least, we find in this book his phenomenal renunciation, his passion for truth, his childlike sympathy and lack of egotism, his yearning for God, and his love for all humanity. Now we come to the other part, that is my master according to Swami Vivekananda. A short sketch of Swamiji is given in relation to Sri Ramakrishna. I'll not go into details of that portion as most of us are aware of it, but I will just mention some salient points. Swamiji was a precocious boy, full of inquiry for the truth. He practiced meditation, and by his teen years, when he was in teenage years, he had already studied a lot of religious and philosophical systems of the East and West. In search of God, he reached Thakur, where he asked the famous question to him, "Sir, have you seen God?" We all know Thakur's answer. And Swamiji later says, "For the first time, I found a man who dared to say that he saw God, that religion was a reality and to be sensed in a more intense way than we sense the world." From 1881 to 1886, a great and close relationship of love developed between the two. And Thakur taught him many spiritual disciplines till 1886, August, when he also lastly transmitted all his powers to him. And he said to him, "Ajke toke shob kichu diye phokir hoye gela. I give you everything and I am now a beggar." Ramakrishna and his message. Girish Ghosh had asked Swamiji to write on Thakur, and we know he declined by saying that he will end up molding a monkey instead of a Shiva. In Bengali, the words he used was "Shib gorte bandor na baniye pili." Although he expressed his inadequacy to speak or write about Thakur, yet we find scattered throughout the 9 volumes of complete works his reminiscences and reflections on Thakur. We can sense Thakur's presence in all his writings, lectures, commentaries. To one disciple who had asked him if Thakur was an avatar, he said, "He is even greater than Ramachandra, Krishna, Buddha, Jesus, etc." No wonder the arati he composed Thakur on Thakur is a compact description of Thakur. And the Pranam mantra also mentions Thakur as Avatara Varishtaya, my master. In the West, other than his 2 lectures at New York and later at London in 1896, he rarely spoke of Thakur. The reason was he was opposed to dogmatism, fanaticism, and personality cults. Such cults of personality rise and spread very fast, no doubt, but they also fall and are very quickly dissipated. When Ramchandra Datta asked him, why did he not speak about Thakur in America, prompt came the reply from Swamiji. The audience would then immediately have asked me, would have told me, we have our Christ. To his very small band of disciples at Thousand Island Park, though, who were serious students of Vedanta, he spoke about Thakur. Some of the things he mentioned, I will just say in brief. Sri Ramakrishna was the son of a very orthodox Brahmin who would even refuse a gift from any but a special caste of Brahmins. Owing to the extreme poverty in his family, Sri Ramakrishna was obliged to become in his boyhood a priest and dedicated his life to Divine Mother Kali. Yes. This awakened such intense devotion in the heart of the young priest that he could no longer in later carry out the regular temple worship.
and he gave himself up entirely to meditation. A relative fed him once a day and watched over him. Whatever teachers he needed came to him unsought. From every sect, some holy saint came and offered to teach him, and to each he listened eagerly. But he worshipped only Mother. All to him was Mother. Now, this was just a brief statement about what he had told the Thousaland Park people. Now, how he could not speak harshly. Just a second, sorry. How he could not speak harshly to anyone, how he said, "You can see God as I see," and how scientific religion was when he said, "You follow the same means and you will have the same vision." And he cared not for name and fame. This is what Thakur was. When Swamiji spoke at Madison Square Garden, New York, Concert Hall rather, about on Thakur in 1896, Sister Devamata writes, the entire audience, which was full to the rafters, was stilled in awe, and she herself was transfixed. According to Swami Nirvedananda, he said that in fact his speech, initially Swamiji hesitated to speak before this worldly minded crowd. But Thakur himself appeared before him and asked him to speak, as it would do them good. Now, here are some highlights of the lecture. He said, if you want to be a true reformer, 3 things are necessary. Do you feel for your brothers? Have you found a remedy to mitigate sufferings? Can you stand up for your ideals even if the world wants to crush you down? He spoke of the character of Thakur's parents, his childhood, education, priesthood, longing for God, his conquest of lust and gold. Concluding words were, my master's message to mankind is be spiritual and realize the truth for yourself. Now, there was also a lecture given by Swamiji as a criticism of the West. But I'll not go into the details of the criticism, and which he later repented, saying, my master would criticize no one. And which he later banned. So he banned this publication. Because he said, by this I have done great injustice to my master. But in the end, he also said, I love the Yankees. The people I love most, I scold most. He told them, you may curse me today for what I am saying, but tomorrow you will bless me. That's all, Maharaj. Pranam, Maharaj. That's good. Very good. Very good. Thank you. Very good. Well done. I have been following the article, both of them. Very good. Done a very nice job. Right. Good job done. So, shall we start with the Yes, Maharaj. Dilip Bhai, जी महाराज जी ओके you are first today. चलो बहुत बढ़िया महाराज जी प्रणाम Namaste. My first question on page number 394. In a vision, I saw that Sasi and Sarat were among the followers of Christ. Maharaj ji, what Thakur saw in them that made him to think that they are followers of Christ? So, Thakur knows, I don't know. How can I say? Know what it has been told. अच्छा So he found out. Oh, that's right. नहीं उन्होंने उनको पता लगा लिया कि वहाँ के हैं. अब वो क्या देखा ये क्या मालूम. Okay, जी चलिए हाँ Maharaj ji, page number 396. Maharaj ji, while reading clause number 3 and 4, it is found that people have misunderstood by reading different articles written by different people, which include articles of Mr. M. And some of the articles were not correct. How this is possible for the article of Mr. M? No, this is not possible. This is not for Mr. M. जी वो तो some of the articles कहा है ना, तो Mr. M का article थोड़ी होता है वहाँ. Mr. M का article exclude कर दिया.
नहीं महाराज जी, यहाँ पे लिखा वो है। तो सेंटेंस, ये तो सेंटेंस देखा है ना कि इतने सारे थे, तो इसमें से सम है ना, जी, पर उसको कुछ फिर कुछ कुछ जो है, तो कुछ में से एम एम नहीं है, उसको पढ़ोगे नहीं, तो पता चलता है। जी जी, उनने बाद में ये लिखा कि एम ने इसको रिवर्ट भी किया है। इट इज रिटन, मैं पढ़ता हूँ महाराज जी। यस, 3 and 4। पेज बोलो तो। जी हाँ, पेज है 396। बोलो, पढ़ो। जी, पेज नंबर 2। Third, by 1909, several books had been published about Ramakrishna, including ठीक है, Sri नाम बोलो, पढ़ो। हाँ, Puthi and Sri Ramakrishna and Kathamritam. Some of these writers' records were not accurate, and some focused on the miracles of the master and performed, which he himself had despised. With the goal of presenting a flawless biography of Ramakrishna, Sardanand began to write a Lila Prasang. He appealed to the master's devotees to send him the present order the authentication. हाँ, देखो, जो कई किताबें हैं ना, जी श्री रामकृष्ण पोथी, रामकृष्ण महिमा, श्री रामकृष्ण चरित, उसके जी, बाद में है एन श्री रामकृष्ण कथामृत बाय एम, है ना। यस यस यस, उसके बाद में कहते हैं सम ऑफ दिस राइटर्स रिकॉर्ड वेर नॉट एक्यूरेट, सम ऑफ दिस राइट, ओके तो उसमें मैम एम न भी हो सकता है, ओके। इनमें से कुछ। जी महाराज जी, इफ यू परमिट मी, लेट मी रीड नंबर 5, जो मेरा थर्ड क्वेश्चन 3A है। श्री Sardanand ji tried to justify the philanthropic activities of the Ramakrishna mission and also to remove misunderstandings about Ramakrishna's teachings. Serve human beings as God. And the recorder of the Gospel of Sri Ramakrishna had commented that the monastic disciples had changed the focus of the master's teaching, which according to M was God realization and not social service. Of course, M revised his opinion in 1912. हाँ, Yes, when the तो हो Holy गया, तो ठीक है, Ramakrishna, हाँ, वो मेरा तो सवाल। यहीं पे तो हो गया, इसका उत्तर तो हो गया। जी नहीं, हाँ, यानी महाराज जी, हमने जो पढ़ा था मिस्टर एम की किताब से कि एवरीथिंग ही हैज रिटन एज पर द स्पीच गिवन बाय द मास्टर। ठाकुर, हाँ, हाँ, तो ठाकुर द मास्टर, यस। अब ये इसके अंदर ये इनको रिवाइज करने, क्योंकि एम ने कभी भी वो नहीं लिखा था जो नहीं हमने देखो, पढ़ा ऐसा है कि था, उन्होंने उसकी बात एम कर। ने जो लिखा, वो ठाकुर ने जो बोला वो लिखा, हाँ लेकिन उसने कमेंट जो किया था ना, जी, उन्होंने ये कहा मिसअंडरस्टैंडिंग, कहता है ना, साधन अबाउट राम हाँ, serving human being. यस, And the recorder of the gospel had commented that the monastic disciples had changed the focus of the master's teaching, which according to him was God realization, not service of God. So ये श्री माँ ने समझा वचनामृत सुन के, अच्छा, हाँ, तो ये तो माने, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जी, इसलिए वो नहीं समझ में आया। उसके बाद माँ शारदा ने कहा, तब उसको समझ में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी दिस हैज बीन चेंज बिकॉज ऑफ माँ। तो वो तो बाद में उनको समझ में, जब माँ शारदा जी यहाँ पे वाराणसी सेवाश्रम में आई, तो बोली कि देखो हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ऐसे, जी 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 महाराज जी, बराबर। महाराज जी, पेज 397, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक ऑफ लीला प्रसंग, फोर्थ वॉल्यूम, रिटन बाय शारदानंद जी, एंड द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण बाय मिस्टर एम, क्योंकि वो भी आई लीला डोंट नो, प्रसंग। अच्छा, ओके, जी मैं, आई हैव नॉट, आई डोंट नो ये क्या है। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट किताबें हैं, ये ओके, दो डिफरेंट किताबें हैं भाई। जी जी। हम्म, Oh, page number 398, question number 4. He who born as Rama and Krishna in previous ages is now in this set, as he pointed to his own body. The spiritual experiences of this place, meaning himself,
have surpassed even the Vedas and the Vedanta. Maharaji, please explain the spiritual experiences of this place, meaning himself, have surpassed the even Vedas and the Vedanta. ये क्या इसका मीनिंग तो वेद और वेदांत के जो शास्त्र हैं, हाँ वेद जितना जिसको पढ़ा है, उपनिषद है, वो हाँ सब बातें हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे लिखा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, ऐसा ये वेद में लिखा हुआ है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, ऐसा वेद में लिखा है। तो वेद में ये चीजें लिखी है, तो मेरे यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है ये उस स्टेप आगे चला गया है। नहीं नहीं समझ में महाराज जी। नहीं, जैसे है यहाँ पे तो ये क्या लिखा है यहाँ पे कि क्या है, इससे पढ़ो। He who born as Rama and Krishna in previous ages is now in this earth as appointed to his own body. The spiritual experiences of this place, meaning himself, have surpassed even the Vedas and the Vedanta. They have surpassed. महाराज जी जो मेरे इसमें जो एक्सपीरियंस हुए हैं, हाँ वो ठाकुर के वेद और वेदांत के जो वर्णन है उससे भी आगे चले गए हैं। ओके और महाराज जी वी आर नथिंग, सिर्फ मैं ये पूछता हूँ वेदांत एंड वेदांत आर द फाइनल एवरीथिंग, देयर इज इट इज गॉड, उससे आगे कोई एक्सपीरियंस होते हैं? और ये बोल रहे हैं यहाँ पे सब सरपास इवन द वेदा एंड वेदांत, मतलब ये है कि ठाकुर एक्सपीरियंस जो है वेद और वेदांत से भी आगे है। जी महाराज अच्छा मैं नहीं, कुछ एक बोल सकती हूँ? निवेदिता जी एक मिनट प्लीज। महाराज जी ये बहुत अच्छा है। अब सिर्फ आप यदि बता सके तो कि वेदांत और वेदांत से ऊपर भी इनको जो एक्सपीरियंस हुए ये कहीं पे भी लिखे हो और आपको मालूम हो तो बता दें। नहीं, वो अलग है, बहुत सारे, आप देखना पड़ेगा उसमें बैठ के। महाराज ठाकुर के मैं कोशिश करूँ? ठाकुर के एक मिनट ठाकुर के एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं। जी अब जी इसमें आपको बैठ के कोई बैठे नहीं बैठे तब तक समझ में नहीं आएगा। निवेदिता बोलो। हाँ, ये जो ठाकुर का जो वेद वेदांत पार चले जाना, इसका मतलब है पहले जो खाली मुक्ति के लिए ये चेष्टा करते थे, पर ये मतलब मुक्ति के बाद फिर आके लोगों की सेवा करना, ये ठाकुर का ही एक यूनिक चीज है। मतलब ये वेदांत में नहीं है, पर ठाकुर ने इसको किया, ये वेदांत के पार जाना है। मतलब जीव शिव भावे जीव सेवा, ये सब वेदांत हाँ, के पार चला गया। वेदांत में। हाँ, पार चला गया है। दिलीप भाई हो गया। okay okay now next thank you page number 399 question number 5 I am so close to them but I don't listen to what they are talking about. I have told ears don't listen to anything that is unnecessary, so my ears are not listening to them. Sardanand ji had total control over his senses. हाँ महाराज जी यहाँ मेरा सवाल ये है कि महाराज जी how Sardanand ji controlled over his senses. Please explain the techniques which he had, because it is very common problem for all of us. We cannot do japa or mantra where there is a slightest noise. यदि आप इस पर कुछ हमें दिलीप भाई, कुछ समझा सके। इस टेक्निक का मतलब है कि अपने मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त करना, यही हुआ ना? हाँ यही हुआ, पर कैसे कंट्रोल होता हाँ, है? तो ये मन पर नियंत्रण करने के लिए एकांत में जाके 25 साल तक जब मन को एकाग्र करो तब होगा। अच्छा बोल दिया मैंने बोल दिया और तुमने सुन लिया, ऐसे तो होगा नहीं। नहीं पर यानी कि कुछ समय तो एकांत के बाद जब हम वापस आते हैं कॉमन सिर्फ एकांत में ये जो है ये अभ्यास हो जाना चाहिए ऐसा मन का। हाँ और कि ये बाद अभ्यास जो है वो 10-15 साल से कम के द्वारा नहीं होता। नहीं, पर ये आवाज उसके बाद हमें कभी बाहर का आवाज सुनाई नहीं देगा। नहीं, उसके बाद में अब जब आया आवाज तो मन को हटा सकते हो। अच्छा ओके। यानी देखा कि अभी ये जूम मीटिंग हो रही है, बाहर में कुछ हो रहा है, हाँ तो आपने मन को हटा लिया है, बाहर कुछ नहीं जाएगा, मन केवल जूम मीटिंग में लगेगा। अच्छा या आप ध्यान करने बैठे हैं और मन थक कर बाहर ट्रेन चल रही है, हाँ तो आप मन को ऐसे हटा लोगे कि ट्रेन का आवाज नहीं सुनाई देगा। हाँ, पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे ये जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ दिलीप भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं, ये साधना की लाइफ का है। अच्छा जी जी हाँ, ये साधना की लाइफ का है, प्रैक्टिकल लाइफ का प्रश्न नहीं है। अच्छा हाँ
जी महाराज जी। हाँ, अच्छा, शारदानंद जी जैसे ही कर सकते हैं ना, तो कोई नहीं हाँ कर हाँ, जी जी महाराज। Number 6, page number 400. When I saw Swami Brahmanand and began to feel strong again. Maharaj ji, please tell us the power Swami Brahmanand had. He had a very powerful mental. वो तुम उसको पूरा पैसेज पढ़ो, उसमें ऐसा है ना, एक एक नहीं है, अलग अलग पावर है। यानी मतलब ये है कि दिलीप भाई मेरे पास बैठे होते हैं ना, हाँ तो ब्रह्मेश्वरानंद जी को शक्ति मिलती है। जी ये दिलीप भाई ऐसे है, ये मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को हाँ। ज्यादा शक्ति मिलती है। ये इस तरह का भाव है, ये व्यक्ति का भाव नहीं है। ओके, अच्छा अच्छा, जी 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 महाराज जी। अच्छा, नेक्स्ट पेज नंबर 400 पे ही है। Neither M nor Sardanand recorded the last days of Sri Ram Krishna. Yes, sir, that is very important. Maharaj ji, please tell us the powers. नहीं, Maharaj ji, why the last days of Ram Krishna were not recorded? क्योंकि श्री रामकृष्ण तो भगवान थे, हाँ, तो भगवान की मृत्यु हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर कैसे वर्णन करेंगे भगवान की मृत्यु का? हम्म। महाराज जी, ये तो बात बराबर आपने कही, पर जब ये इस संसार पे आए तो जो अरे वो श्री राम कृष्ण जब वो बैठे होंगे ना, हाँ तो उनको सामने दिखते होंगे। अब लिखने बैठे हैं, सामने दिखते होंगे। जी, तो नहीं ये तो सामने वो तो दिखते ही हैं डायरेक्ट। शारदानंद जी को दिखते थे। अच्छा ठाकुर के महासमाधि फिजिकल बॉडी जाने के बावजूद बाद में भी अच्छा, दिखते थे, हमें हमेशा दिखते थे। नहीं, जैसे कृष्ण को ये एक्सप्लेन किया गया है कि तीर मारा गया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और सो एंड सो फोर्थ, इट इज रिटन। इट इज नथिंग लाइक। ठाकुर के लिए ये कहीं से कहीं तक वर्णन नहीं है कि ठाकुर की डेथ हुई कैंसर के बाद, उस समय उनकी क्या स्थिति हाँ थी या हाँ हाँ, क्योंकि 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 लिखा तो है, वो तो कहीं ना कहीं तो लाइब्रेरी बाइबल में मिलेगा। इन लोगों ने नहीं लिखा, हाँ। क्योंकि उनको तो दिखते थे सामने, मरने के बाद भी दिखते थे सामने। अच्छा सर ये ओके, तो है, मैं कैसे बोलूं कि मर गए? अच्छा अच्छा, राइट स्वामी जी। जी, क्या उनके लिए मे बी इट वाज पेनफुल फॉर हिम टू राइट सर आल्सो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्यवहारिक दृष्टि से? नहीं महाराज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिकॉज ही वाज स्टिल ए लिविंग प्रेजेंस फॉर देम। यस, ओके, That's it. That's it. That's it. बराबर। नाउ वी कम टू माय मास्टर अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। उसमें मैंने 3 सवाल पूछे महाराज जी। पहला सवाल पेज 404 पर है। नॉन ड्यूअलिस्ट वेदांता, ड्यूअलिस्ट वेदांता एंड प्रैक्टिकल वेदांता। महाराज जी, व्हाट इज प्रैक्टिकल वेदांता? दैट इज, कौन सा नंबर, पेज नंबर? हाँ, पेज नंबर 404, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज नंबर 404, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट 2 लाइन्स, लास्ट 2 लाइन्स। From Master Narendra also learn practical Vedanta. हाँ, यस, नरेंद्र तो ऑल्सो वेदांत लर्न प्रैक्टिकल पहले वेदांत। तो ये, पहले दिलीप भाई ये तो बताओ कि थियोरेटिकल वेदांत क्या है? कौन सा? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, थियोरेटिकल वेदांत होगा ना, प्रैक्टिकल है तो थ्योरी भी होगी। नहीं, अच्छा, तो फिर ये नॉन ड्यूअलिस्ट, हमने इसको नॉन ड्यूअलिस्ट और ड्यूअलिस्ट से कंपेयर करके देखो देखो देखो, आपने हमको पिट दिया। थियोरेटिकल वेदांत है हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ बराबर, जी यही जी, है ना। हाँ और जीव जीव जो है, जीव और ब्रह्म एक है। हाँ बिल्कुल, ये है जी जी, यही है वेदांत, हाँ ये ये, थ्योरी हो गया। हाँ अब प्रैक्टिकल जब आया, हाँ तो जी, मेरे सामने जीव आया, एक गरीब आया। अच्छा, प्रैक्टिकल वेदांत में, हाँ कहते हैं वो गरीब आया, हाँ लेकिन वेदांत में तो ये ब्रह्म है, हाँ, ये हाँ जी बिल्कुल, हाँ। तो इसको ये तो ब्रह्म है, भगवान है, इसकी सेवा करो। ये नहीं हो गया प्रैक्टिकल वेदांत। नहीं महाराज जी, हमें ये होता है कि वेदांत के अंदर जो हम समझे हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, और सब जो संसार है वो ब्रह्म है, ब्रह्मन हाँ है, बराबर।
तो इसके अंदर फिर प्रैक्टिकल की जरूरत कहाँ पड़ी? ये नहीं प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल ये हो कि गरीब आया भूखा आया, अच्छा हाँ अगर तो प्रैक्टिकल जरूरत नहीं तो तुम खाना भी मत खाओ ना। अच्छा उसको जो ये खाना खिलाता है या उसकी सेवा करना उसकी तकलीफ में, दैट इज प्रैक्टिकल वेदांत। प्रैक्टिकल वेदांत। ओके 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 जी जी महाराज जी बहुत। हाँ नेक्स्ट पेज नंबर 404 पे ही है। स्वामी विवेकानंद passed away on 4th July 1902 at the age of 39 only. Maharaj ji, was it a natural death or he took samadhi? Whether Thakur, Maharaj ji, yeah, at the age of 39 he expired. Now my question is, because at a very short age he has expired, and telling that my mission is over, what the Thakur has given me. So my question was कि ये उनकी सांसारिक डेथ थी या समाधि ली थी उन्होंने? अरे फिजिकली तो मेडिकली डॉक्टर ने जाके देखा कि हार्ट बंद हो गया। ना ना महाराज जी हार्ट बंद होना वो आपने मेडिकल साइंस में बता रहे। मेरा पूछने का सवाल ये था कि जिस प्रकार से ठाकुर को कैंसर हुआ और बीमार हुए और डेथ हो गई, उसी प्रकार से सिर्फ मेरे को ये जानना था कि इन्हें भी कोई बीमारी हुई, या क्योंकि उनने तो स्वामी जी ने तो ये कहा था कि मेरा मिशन पूरा हुआ मैं जाऊंगा बस खत्म हो गई बात, तो समाधि के कारण चले गए क्या? हाँ 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 जय यस He even chose the date 4th of July. यस एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांट। हाँ He हाँ he अपनी chose इच्छा से it. गए हैं समाधि में, इसमें प्रश्न ही क्या उठता तुम? नहीं नहीं तो वही मैं जानना चाहता था महाराज जी अरे प्रश्न। ये रिकॉर्डेड है, अपनी इच्छा से गए। अच्छा इच्छा मृत्यु थी जी। पेज नंबर 404 अगेन वन। Once Girish Chandra Ghosh, a great devotee of Ramakrishna, asked Swami Vivekananda to write a biography of Ramakrishna. Swamiji replied, "Please don't request that. I shall very gladly do whatever you ask of me other than this." और प्रश्न क्या है तुम्हारा, पढ़ो। हाँ मैं प्रश्न बोला, I have not understood. एक मिनट महाराज जी, why Swamiji said so? Swamiji said what actually he means. हाँ ये स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे कारण क्या था? कि क्यों, ठीक बात है, उसको ये कारण यह था कि वो इतने ठाकुर इतने महान हैं, उनकी महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। सीधी बात। और जी और लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी जी यूज्ड लॉजिक एंड साइंस व्हेन एक्सप्लेनिंग द इटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत। व्हाट इज साइंस इन वेदांत? हाँ पेज नंबर 406। हाँ उसके अंदर सेकंड पैराग्राफ के 4 लाइन है, स्वामी जी यूज्ड लॉजिक एंड साइंस when explaining the eternal principles of Vedanta. So my question is, wow, what is science in Vedanta? तो तुम बताओ ना। साइंस साइंस ये है फिलहाल कि एक 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 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ो तो वाटर बन जाएगा। पर वेदांत, हाँ पर वेदांत, हाँ सुनो 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 सुनो, हम खाना खाएंगे तो पेट में जाके बच जाएगा, हाँ तो ये सब हो रहा है ना, ये जी सब का सब वेदांत स्वीकार करता है। अच्छा यानी वेदांत में ऐसी कोई चीज नहीं है प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि बस बात है आत्मा है आत्मा है आत्मा, नहीं, वो यहाँ पे सामने दिख रहा है, मेरे सामने पेशेंट आया है, वो रोगी है, उसको मैंने खाना खाया, ये प्रैक्टिकल वेदांत तो हुआ। हाँ और ये साइंटिफिक है, क्योंकि वो खाना खाता है तो पेट में जाता है और पच जाता है। अच्छा जी महाराज जी, बहुत चलिए बराबर समझ में आ गया। Thank you. प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। देवाशीष शाह। हाँ महाराज जी प्रणाम। महाराज जी हम्म, प्रणाम। महाराज जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि पेज नंबर 394 में I do not want to see any particular form of God in Yes. meditation. स्वामी शारदानंद जी महाराज बोल रहे हैं, I do not want to see any particular form of God in meditation. I want to see Him in all beings. I do not like visions. The master said with a smile, that is the last word in spiritual attainment. You cannot have it all at once.
My first question is, number one, is meditation possible without any particular form? 100 में definitely. अच्छा, अरे आज जब करोगे राम का नाम लोगे तो राम के, अच्छा देखो, ओम ओम के ऊपर ध्यान करो। ओम के लिए तो निराकार ध्यान होगा। निराकार ध्यान जैसी चीज बहुत बड़ी है। निराकार ध्यान एक पूरी प्रोसेस है। हाँ, तो ये सिर्फ या वो जो भी होगा, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। मेरे को तो गुरुदेव ने कहा था, मेरे गुरु ने मेरे को कहा था, जी मेडिटेट अपॉन ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, यानी सर्वव्यापी आत्मा का ध्यान करो। जी तो क्यों नहीं, ये तो आप करते हो रूप का ध्यान, लेकिन बहुत सारे लोग जो निराकार के उपासना वाले करने वाले हैं, निराकार वाले निराकार ध्यान करते हैं। तो Swami, अरे related question. आकाश जो है वो आकाश तो निराकार है ना। जी जी, तो फिर तो Swamiji, ऐसे there's a related question here. यस, For example, Swamiji, now when we are reading something, something of Swamiji strikes us. Then we keep meditating on that sentence. Isn't that also equivalent to meditation? यस, Okay, thank there are so many ideas thinking on the mind. When it is Yes. continuous, it becomes meditation. yes Right. Thank you. Thank you. बिना Yes. महाराज जी Maharaj ji, बिना Maharaj ji, how do you meditate on the all-pervading consciousness? yes exactly. हाँ, ये बैठ के आप सोचो ना, वो आकाश की तरफ जैसे सोचो, मन में कोई विचार ही नहीं आता है, कॉन्शियसनेस आता है, लगता है कि चैतन्य है, कुछ लगता है, एक सत्ता मात्र की अभी अनुभूति होती है। Okay. But हाँ? यानी this will मेरे को तो मंत्र दीक्षा के समय बोला था ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस का ध्यान, और जब हम स्टूडेंट थे, लड़के थे, छोटे से, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। क्यों नहीं, सारा वेदांत भरा हुआ इसी के ऊपर तो है। महाराज जी, आपने पहले ये भी बताया कि स्वामी ज्योतिषानंद जी महाराज ने आपको बताए थे कि श्री रामकृष्ण इज ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, ये भी बताए थे आपने। हाँ, तो ठीक है, दोनों चीजें हो तो नहीं, रामकृष्ण को हटा दो, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है कि इफ यू कैन वैनिश रामकृष्ण अरे इज रामचंद्र का, राम के श्लोक स्तोत्र मिल जाएंगे, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तो वे शुद्ध ब्रह्म है राम, फिर भी राम नाम बोल रहे हैं ना। ओहो, ये तो राम को अच्छा हटा दो, शुद्ध ब्रह्म जी परात्पर, जो निराकार हो गया तो सर्वव्यापी हो गया। अच्छा महाराज जी, ये कभी नहीं, देखो देखो, आप लोग ध्यान करें, जब भी कोई ध्यान करे, जब भी कोई रूप का ध्यान करे, राम का ध्यान करे, कृष्ण का ध्यान करे, रामकृष्ण का ध्यान करे, किसी भी देवी देवता का ध्यान करे, हमेशा याद रखना कि ये निराकार है, उसके पीछे सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये सब जो है ये ब्रह्म के रूप हैं। हम नहीं तैयार कर पाते, इसलिए आगे हमारे हम को देते हैं। महाराज वेरी ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी महाराज वेरी जी, इंपॉर्टेंट। ये एक प्रोसेस है, आपने बताया था कि रूप ध्यान के बाद ये सर्वव्यापी ध्यान करना, आपने बताया था करना शायद। ही चाहिए। हाँ, उसी में तो महाराज जी वही सर्वव्यापी ध्यान है। ठीक है महाराज। महाराज जी, मेरा ये है कि हम लोग तो इनिशिएशन का टाइम में विथ फॉर्म, रामकृष्ण एज ए फॉर्म, एंड उनका गुण जो है असीम प्रेम, असीम करुणा, असीम ज्ञान, असीम पवित्रता एंड असीम कंपैशन, ये सब का पवित्रता, ये सब बारे में हम लोग सोचते थे। मतलब ये है कि रामकृष्ण केवल एक पुरुष है ना। हाँ, अब तो भगवान कैसे हुए फिर? तो फिर अब ये इसको आप सोच के बताइए, आपके गुरु ने बताया होगा, कहीं न कहीं बताया होगा। हम ध्यान नहीं कर पाते, इसलिए आपको कहा कि रूप का ध्यान करो, परम आनंदमय करुणामय ऐसा रूप का ध्यान करो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद हैं। ये तो है। तो फिर सच्चिदानंद का क्या मतलब हुआ?
तो मेरा महाराज जी, ये जो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो पार्ट अपनी बता दिया अभी अभी। सेकेंड पार्ट जो है, वंस यू मर्ज योरसेल्फ टू द आइडियल, देन यू कैन गो टू दैट निराकार। Whatever it is, रूप ध्यान, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान, ये ध्यान की 3 प्रोसेसेस है। हम्म ये सब जगह मिलेगा तुमको। हे भगवान, अच्छा। सारा जीवन निकल गया, लेकिन ये चीज नहीं समझे कि आपके इष्ट जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। हम्म फिर जी उनका जी रूप भी है, गुण भी है, लेकिन वो स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। ये बताया गया। हाँ बताया गया नहीं, लेकिन करेंगे नहीं, पूछेंगे, हाँ, प्रश्न करेंगे, नहीं फालतू नहीं, बातें इसको करेंगे। इसको एक्सपांड करना पड़ेगा महाराज जी। सच्चिदानंद अब तो ये सब तुम जो बोलते हैं। करना हो तो करो। थोड़ा चलो आगे थोड़ा चलो। आप बताएंगे तभी होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं हो। अच्छा। ये ठीक है, ये है ना, नाम रूप अपने गुरु, आपके गुरु से ही देखिए ना, उनके विचारों को देखिए, बातों को देखिए, मिल जाएगा आपको कि जो आपके जो इष्ट हैं उनके रूप है, गुण है, वो स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप ही है। अच्छा और ये हमेशा याद रखना है, थोड़ी समय तक ध्यान भी करना। अच्छा जी महाराज जी। तो ये जो महाराज जी अभी अभी आपने जो बताया है कि ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, तो हमारा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, गुरु जी ने हमें सुबह शाम करने के लिए बोला है, उसका साथ हम जोड़ सकते हैं क्या? तो नहीं है। अरे होना, वो आपने देखिए, आपके गुरु ने भी उसने कहा होगा, आपने सुना होगा, सब गुरु ध्या- बताते हाँ बताए हैं, लेकिन वो ध्यान का समय में उनका ये बताए हैं कि उनका प्रेम, करुणा, पवित्रता, ज्ञान और आनंद, ये तीन सोचते 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 रहो अभी। हैं। उसके पहले जब शुरू करोगे ध्यान, तब सोचोगे कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है पूरे, हाँ और ये वो बताया। उन्होंने एक रूप धारण कर लिया है, जी महाराज। क्योंकि मैं निराकार का ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए। ओहो। हाँ, जी महाराज चलो जी। आगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज जी। इट अपियर्स दैट, मैंने ये क्वेश्चन का, ये जब शारदानंद जी महाराज जी ने श्री रामकृष्ण से पूछा है कि मैं आई वांट टू सी हिम इन ऑल बीइंग्स, तब उसी सिलसिले में सेकंड क्वेश्चन है। इट अपियर्स दैट all spiritual seekers are going to have many divine visions before they can see him in all beings. Is it correctly understood? नॉट नेसेसरी, नो 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 नो। अच्छा, डायरेक्टली जंप कर सकते हैं? अरे आपने इष्ट का ध्यान करो और जप करो, हाँ वो तो और सब उसके है, बाद लेकिन में आपको दर्शन होगा। ये सबको, हमारा इष्ट जो है वो सभी जगह परमात्मा है, लेकिन ये बाकी बहुत सारे दर्शन नहीं होंगे। ओहो ओहो, अच्छा। हाँ मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैंने टू सी हिम इन ऑल बीइंग्स, उसका पहले आपको ये घटना विजन आते जाएंगे नहीं डिफरेंट। नहीं 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 नहीं। जरूरी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है महाराज जी। Number 2, question number two, page number 395. Unless people understand how the master remained in Bhavamukha and how the mood of a guru was natural to him, they will not be able to comprehend the master's wonderful character. The अच्छा, mood of a guru. Now मेरा question है कि महाराज जी, Sri Ramakrishna never liked Sri Ramakrishna never liked the idea of somebody calling him a guru. He used to tell that Satchidananda alone is guru. This is contradicting to what we read in Gospel of Sri Ramakrishna. Kindly explain. नहीं नहीं, ऐसा है कि जब ठाकुर, जब लोग ऑर्डिनरी भक्त के से रहते थे, कोई आके बोलता प्रणाम करता, क्या क्यों कर प्रणाम कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे को मत करो। वो तो ये विनम्र भाव था उनका। लेकिन जब भावमुख में होते थे, गुरु के भाव में चले जाते थे, Oh. हाँ, तब वो सब कोई सबके ही गुरु हो जाते थे। स्वाभाविक रूप से गुरु हो जाते थे, भाव में Hmm. परिवर्तन हो जाता था। Hmm. Hmm. अच्छा। चलो। अच्छा। हाँ ठीक है महाराज जी। भावमुख में वो गुरु हो जाते थे, लेकिन ऐसा नॉर्मल अरे कंडीशन। चलो आगे, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, पेज 403. I began to go to that man day after day, and I actually saw that religion could be given one touch, one glance,
can change a whole life. My question is it true only for avatars to give religion by one touch, one glance? Not by anyone. Yes, মানে I don't हमारा- know whether anyone else has. I have not heard about it, and whether Bhavani Baba could do it, we don't know. हमारे स्वामी जी करते थे ना, हाँ स्वामी जी का थे यहाँ, स्वामी जी स्वामी जी तो करते थे। अवतार स्वामी जी तो अवतारी अवतार है थे। वो भी। स्वामी जी माँ भी करते थे, हाँ। अच्छा, एक only for the avatars. Yes, okay. My answer is, the question is answered. रीता माँ, आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। चलो आपका- फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा। फोर्थ क्वेश्चन में है 404. He trained Narendra in a number of spiritual disciplines and initiated him into teachings of non-dualistic Vedanta. So my question is, Maharaj Ji, how was Narendra trained in a number of spiritual discipline without being initiated in that particular spiritual discipline called Vaishnava, Shaiva, or whatever it is? Same, your East itself is taking the form of Kali. Same is taken the form of Krishna. Same, your East itself is taking the form of Rama. So you meditate on Rama, meditate अच्छा, on Krishna. ओहो, Hmm. तो इसका For मतलब every है, time, for every time initiation is not necessary. For people like Swamiji, we cannot do it. अच्छा, We are not able to meditate even our own Ishta properly. Do you think we will be able to meditate on other guru, other Ishta? No. महाराज जी, मेरा एक छोटा सा डाउट है इसमें कि श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ, उनको भैरवी ब्राह्मणी को मिला था गुरु, केनाराम भट्टाचार्य जी जो पहला गुरु उनके थे, उसके बाद रामलाला का लेके गुरु मिला था। उन्होंने जिस स्टेज क्रॉस किया है, ही हैड गॉट ए गुरु इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स। तो व्हाई इज और नॉट, यहाँ पे क्या लिखा है बोलो तो? नहीं, यहाँ बोला है कि भाई ठाकुर ने स्वामी जी को हर चीज में ही ट्रेन नरेंद्र इन ए नंबर ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स एंड इनिशिएटेड हिम इनटू द So he might टीचिंग्स have ऑफ Thakur टीचिंग। might have initiated him in all the mantras. अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन था कि अगर, हाँ, क्योंकि Okay, ठाकुर जी okay, को, okay. हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 407, ये है द 407 में, द वेव्स ऑफ रिलीजियस थॉट rise and fall, and on the topmost wave stands the prophet of the period. Ramakrishna came to teach the religion of today, constructive and not destructive. He had to go afresh to nature to ask for facts, and he got scientific religion which never says believe but see. I see and you too can see. Maharaj ji, my question is, question number 1 A में है, kindly explain on the topmost wave stands the prophet of period. ये क्या बोल रहे हैं? यानी ये है कि यानी जो अवतार होते हैं ना, तो वो हाँ। उस समय एक भावनात्मक भावांदोलन जिसे बोलते हैं ना, तो ठाकुर जब आए तो भावांदोलन था एक। अच्छा, हाँ, तो उस भाव आंदोलन में उच्चतम शिखर पर श्री राम। तो भाव आंदोलन क्या था वो? भावांदोलन यानी विचारों का एक परिवर्तन होता है कि नहीं। हाँ, ये ऐसा है कि पॉलिटिकल आंदोलन है, उसमें एक लीडर नेहरू या गांधी खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। अच्छा, तो ये यह भाव का आनंद है, स्पिरिचुअल मूवमेंट हुआ है, सर्वत्र चेंज हो रहा है। लोग जो है वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, सब जगह हो रहा है। और इसके अंदर श्री राम कृष्ण मानो, इस सारे के सारे अंदर स्पिरिचुअली श्री राम कृष्ण मानो खड़े। तो ये है। महाराज, तो आपने तो पहला मेरा क्वेश्चन का आंसर कर दिया है महाराज जी। अभी बताइए श्री रामकृष्ण का भाव क्या है?
सब भावों के, यही तो बोल रहे हैं, अच्छा, ऑल जितने समन्वय। भाव आंदोलन है सबके ऊपर ठाकुर है। ओहो। हाँ, हाँ। अरे क्या, जो मैं राम भक्त है, वो राम भक्त है, वो भी देखो ठाकुर को देख रहा है। अच्छा अच्छा। कृष्ण भक्त भी ठाकुर को ले रहा है। ओहो हो, अच्छा अच्छा। हाँ, And ओ थैंक यू, Swamiji, थैंक यू, थैंk you. Swamiji, didn't Swamiji say that Thakur is way beyond Lord Krishna, way beyond Lord Rama? He is unparalleled. now Yes, just listen. If you go on taking yes, these yes. sentences and discuss, it will not be possible. Sorry, I always forget. अच्छा महाराज जी, नेक्स्ट मैं पढ़ूं मैं महाराज जी नेक्स्ट ये। ठीक है। हाँ, हाँ महाराज जी, उसी सिलसिले में पार्ट ए आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा लगा है सुन के। अब पार्ट बी में, व्हाट इज मेंट बाय ही हैड टू गो अफ्रेश टू द नेचर टू आस्क फॉर फैक्ट्स, ये क्या बता रहे, नेचर में जाके फैक्ट श्री रामकृष्ण इज टू कलेक्ट। यानी नेचर यानी स्पिरिचुअल नेचर। हाँ, जैसे एग्जांपल दीजिए महाराज जी। जैसे मुझे अगर अपने इष्ट को दर्शन करना होगा तो मुझे अपने आप नेचर में, हमारे स्पिरिचुअल नेचर के अंदर प्रवेश करना होगा। अपने आप का जो आध्यात्मिक प्रभाव नेचर है उसके अंदर मुझे डूबना होगा कि नहीं है? यस। और तब उसके बाद में मैं इष्ट का दर्शन कर सकूंगा। हाँ हाँ, तो ये तो यस। ये चीज जो बाहर से वो की तो नहीं है, ये तो मैंने खुद ने की है। नहीं जो समझा, क्या राम बोलूं? जो राम का दर्शन आपने किया, एक भक्त ने किया, हाँ, वो उसका राम हुआ। अच्छा। लेकिन मैं अपने राम का भक्त करूंगा, दर्शन करूंगा, तो वो मेरे राम होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये हुआ एफ्रेश, गोइंग टू द सोर्स एफ्रेश। समझ में आया? नहीं समझ में आया महाराज जी, नेचर का मतलब हम लोग आउटसाइड आउटसाइड समझते हैं। और फिजिकल नहीं, लेटर मेंटल नेचर। अच्छा, मेंटल नेचर, अच्छा। हमारा मेंटल, स्वभाव कह सकते हैं ना, स्वभाव। वो नेचर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ बात करते हैं। अच्छा, नेचर में एक भाव में मुझे डूबना पड़ेगा टू गेट द पर्टिकुलर आइडिया और हाँ हाँ, इष्ट। भाव भाव भाव, हाँ, हाँ। तो इसका मतलब भाव, अच्छा अच्छा, थैंक यू महाराज जी, चलो अलग थैंक अलग यू। इंसान का अलग अलग भाव है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन 6 में महाराज जी 408 में है, with the unconsciousness of self and finally of touch, which are the signs of the competent witness. The Swami tells us now of his master's inner history and again of those dramatic incidents in which every epos must be written, even though of an avatar. I could not understand this particular text, पेज Maharaj. नंबर 408। 408 में है, कहाँ पे? देव माता की शायद है ये, सिस्टर सिस्टर। देव माता ने कहा है। हाँ, सिस्टर देव माता में। लास्ट पे से। हाँ हाँ, ऐसा ही है महाराज, यस यस यस, लास्ट, यस यस। क्या हुआ, पढ़ो तो फिर से। हाँ, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। ये तो ये, है, वो तो बैकग्राउंड का वर्णन है। हाँ, ये मुझे, ये क्या बोल रहे, एक बता मिनट, रहे एक हैं। मिनट, ठहरो। As he entered the hall from a door inside, one sensed a different mood in him. He seemed less confident, as if approaching his task reluctantly. He began his lecture, but as with a long preamble. But once in the subject, he swept him. The force of it drove him from one end to the platform to the other. ये है क्या? नहीं, इपोज बोला है ना, इपोज के बाद ट्रांसफिक्स एंड ट्रांसेंस, अनकॉन्शियस, इधर है महाराज जी, सेकंड पैराग्राफ देखिए 408 में, विद दैट अनकॉन्शियस, अब मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, 408 पेज नंबर, सेकंड पैराग्राफ, विद दैट अनकॉन्शियस ऑफ सेल्फ ठीक है, एंड ठीक है। फाइन। Unconscious of the and finally of self, which are the signs of competent witness. Swami tells us now his master's inner life, and again of the dramatic incidents in which every epoch must be written, even though of an avatar. How Ramakrishna Paramahansa overcame the temptations of pride, of wealth, of sex, and how he added realization to realization
till his thought became vast, etc., etc., etc. पूरा लेगा। ये शारदानंद जी कहा- महाराज बोल रहे हैं। हाँ नहीं, ये शारदानंद जी नहीं है। ये शारदानंद जी का, मैं देखिए इसका शुरू में बता रहे हैं कि इन उद्बोधन भाषण शारदानंद जी रोट इन द एडिटेड नोट, उसी का तो कंटिन्यूशन ना। हाँ ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यही है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, जो ये क्या बोलते हैं, which every epoch must be written even though of an avatar। अब मैं यानी ये जो है आपके विद द अनकॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ एंड फाइनलिटी ऑफ डेथ, तो स्वामी Yes. जी टेल्स हाउ हेल्प टेल्स अस नाउ ऑफ हिज मास्टर्स इनर हिस्ट्री। ये स्वामी जिस प्रकार से लिखना चाहिए, अपने आप को भूलकर, अनकॉन्शियसनेस ऑफ अपने स्वयं को भूलकर, और फाइनलिटी ऑफ टच यानी पॉइंटेडनेस, विच आर साइंस ऑफ ए कॉम्पिटेंट विटनेस। ये जो है ऐसा जो साक्षी है, बड़ा प्रखर साक्षी है, जिसने श्री रामकृष्ण को ऐसा गहरा देखा, और उसके बाद में अगेन और दो ड्रामेटिक इंसिडेंट्स इन विच एवरी इपोस मस्ट बी रिटन। और ये सब घटनाएं ड्रामेटिक घटनाएं हैं जिनमें एक किताब लिखनी चाहिए, इवन दो ऑफ एन अवतार होते हुए भी ऐसा होना चाहिए। ये सब जो है बिल्कुल टेक्निकल है बाबा, ये अंग्रेजी भाषा का है, ये अपन समझ में जाएगा। छोड़ो। ठीक है महाराज, ठीक है, मुझे भी समझ में, ठीक है महाराज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, पेज 409। उसमें आई डू एवरीथिंग टू बी स्वीट, स्वामी जी बोल रहे हैं, आई डू एवरीथिंग टू बी स्वीट, बट when it comes to a horrible compromise with the truth within, there I stop. I have a message to give. I have no time to be sweet to the world, and every attempt at sweetness makes me a hypocrite. My question is, what is the sweetness Swamiji is talking about? First question. हाँ, स्वीटनेस यानी मीठी बातें करना। अच्छा। अब धर्म में जो त्याग की बात नहीं करना, धर्म में हाँ। भगवान का दर्शन होने पे बड़ा अच्छा लगेगा, ये मीठी बात करना है। तो ये फर्स्ट, दिस इज नॉट, दिस इज स्वीटनेस। अच्छा। तो इसमें यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ रियलिटी, अच्छा। क्योंकि रियलिटी जो है वो त्याग की है, तपस्या की। हम्म। सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, स्वामी जी बताएं कि स्वीटनेस हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आई हैव ए मैसेज टू गिव टू द वर्ल्ड। तो माय क्वेश्चन इज द मैसेज बीइंग यू आर दैट, यही मैसेज उन्होंने देना चाहते थे वेस्ट को क्या? यहाँ पे 7th नंबर यहाँ पे ही है, यहाँ पेज नंबर बोलो तो। ये लास्ट में है महाराज जी, स्वामी विवेकानंद जी का जो लास्ट में है, पेज नंबर 412 का लास्ट में है, I have a message to give. I have no time to be sweet to the world, and every attempt of sweetness makes me a hypocrite. हाँ ठीक है। हाँ, तो उसी मैसेज में बोला है ना कि I have a message to give। तो हाँ। मैं यही चीज पूछना चाहता था आपसे कि उन्होंने काफी चीज उपनिषद के बारे में बताया, वेदांत के बहुत बारे सारा में। मैसेज स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद का मैसेज क्या है बताइए? Each soul is potentially divine। अच्छा। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, और उसको मैनिफेस्ट करना जीवन का लक्ष्य है। ये हुआ स्वामी जी का संदेश। अच्छा। हाँ ओके चलो। ओके, थैंक यू महाराज। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच महाराज जी, प्रणाम। तो तुम्हारे 6 ना 7 कितने पेज थे? हो गया 8 नंबर? हाँ 8 हो गया, सब हो गया महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। नहीं, 9 नंबर वगैरह हो गया? ठीक हाँ है, हो गया, ठीक। ओके हाँ। ओके ओके। अच्छा, एक मिनट महाराज जी, आपने सही बोला। एक क्वेश्चन नंबर 7 मैंने छूट गया, सही बोला, थैंक यू वेरी मच। रिलीजियन इज द वर्ल्ड इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी और एंटागोनिस्टिक। रिलीजियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्नोस्टिक, ये पेज नंबर 409 में है। दे आर बट वेरियस फेजेस ऑफ वन इटर्नल रिलीजियन। तो मेरा क्वेश्चन था, व्हाट आर द फेजेस of eternal religion?
phases of eternal religion. देखो, पहला है इमेज वर्शिप, दूसरा है एनिमल वर्शिप, तीसरा है रिचुअल, चौथा है भगवान का नाम का जप, पांचवा है स्क्रिप्चुरल रीडिंग, और छठा है मेडिटेशन. ओके महाराज जी, ये वही चीज है जो आप हमेशा बताते हैं कि 4 स्टेज है. प्रतिमा वही वो हमने बढ़ा दिया, उसको 4 के जगह 8 कर सकते हो. ओहो, थैंक यू महाराज जी. प्रणाम महाराज जी, थैंक यू वेरी मच. सुबीर मजुमदार. प्रणाम महाराज जी, जस्ट 1 मिनट. हाँ. महाराज जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, around 1886 Swamiji chose Swami Sardananda to help him in 1896 Swamiji chose Swami Sardananda to help him in America, and so Swami Sardananda went to America and England, all these places. My question is, why did Swamiji choose of all the disciples Swami Sardananda? Any reason for that? Because he was the one person who would become absolutely undisturbed under all circumstances. I see. इसका क्या मतलब हुआ? तूफान समुद्र में जा रहे थे, तूफान आ रहा है, ये थे, मालूम है ना? हाँ. सब लोग घबरा रहे हैं, इधर उधर ना भाग रहे हैं. हाँ. एक दुनिया ऐसा शांत बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं. अच्छा. अमेरिका में कितने अप्स एंड डाउन्स, बिल्कुल शांत. ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस दूसरी हो गया, लर्निंग था, ज्ञान था. और उसके बाद में इसी के लिए उनको बाद में जनरल सेक्रेटरी भी बनाया. And he had a good English language knowledge. काफी क्वालिटीज थी, लेकिन जो शांत रहने की क्वालिटी, ये सब. And as you rightly said, USA में तो बहुत उथल पथल था. It was a chaotic culture. चलो नेक्स्ट. ठीक है महाराज. नेक्स्ट सवाल है महाराज, पेज 397 पे, फर्स्ट पैराग्राफ. It is mentioned that some people tried to imitate Girish Ghosh regarding power of attorney. वो क्या हुआ था? कौन, किसने इमिटेट किया, क्या किया था? कुछ आइडिया महाराज? I don't know, लेकिन लोग कहते हैं हमने भी अवकलमा दे दिया है, ठाकुर जैसा कराएंगे वैसा करेंगे. I don't know, it is not easy. वो अपनी इच्छा करेंगे और बोलेंगे कि ठाकुर की इच्छा से कर. मतलब अपने आप को धोखा दे रहे थे. हाँ, धोखा दे. हाँ, ठीक है. डिसीविंग वनसेल्फ. थर्ड क्वेश्चन महाराज जी, ये तो हो चुका एक्चुअली, वो वेद एंड वेदांत के बारे में जो दिलीप भाई ने पूछा था. लास्ट पैराग्राफ, स्वामी जी मेंशन, ठाकुर सेड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस प्लेस हैज गॉन बियॉन्ड वेदास एंड वेदांतास. तो मेरा सवाल था, व्हाट आर दीज एक्सपीरियंसेस? अब मैंने तो थोड़ा सा बोल दिया, हम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म. यही है वेद के जो अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस है. मैं ब्रह्म हूँ और सब कुछ ब्रह्म है. उसके बियॉन्ड ब्रह्म. हाँ, तो वेद वेदांत के बियॉन्ड के अलावा क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस की? वेद में तो यही हाईएस्ट एक्सपीरियंसेस है. तो अभी जैसे निविता दीजिए ने बोला कि शिव ज्ञान है, जीव सेवा एंड ऑल दीज थिंग्स, दिस कैन बी टेकन एज सर्वम खल्विदम ब्रह्म हो गया ना. विज्ञानी की अवस्था, ज्ञानी और उसके बाद विज्ञानी की अवस्था, वो भी वो विज्ञानी की अवस्था है ना, कि हम लोग कर रहे हैं. लेकिन जहाँ वेद की बात करते हो तो वेद से बोलना पड़ेगा ना. हाँ, वेद से. वेद खाली अपने मुक्ति का बोल रहे हैं, तो इसके बाद ठाकुर बोले विज्ञानी. हम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब वेद में तो है. वो सेवा करना वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब नहीं, एक्सपीरियंस करने की बात नहीं. यहाँ प्रश्न ये है, ये पूछा है उन्होंने कि ये वेद के एक्सपीरियंस से परे कैसे चले गए, मतलब ये तो वेद में क्या एक्सपीरियंस होते हैं, ये क्या वर्णन है. तो भाई इससे हमको महाराज, जतमत तत्वपथ ये भी एक
जो ये Don't- जतोमत तत्वपद जो है, ये तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, और जो मिल जाएगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ। ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 406 में है, फर्स्ट पैराग्राफ। स्वामी जी told Lala Hansraj of Arya Samaj that Lala Hansraj was emphasizing only on one interpretation of the Vedas, and that doing that it will help the sect spread rapidly. उसके जो आइडियाज है वो जल्दी स्प्रेड होगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये जल्दी कैसे स्प्रेड होता है अगर एक सेक्ट के ऊपर ही बात किया जाए तो? भैया ये आर्य समाज का ही लाला साहब जो क्या बोले हैं, ये सब हमको कुछ समझ में नहीं। हाँ। उसको तुम आप क्यों बता रहे हो? ये उनकी बात है, हम तो कुछ ऐसी बात नहीं करते हैं, स्प्रिट की बात करनी। नहीं, वो स्वामी जी का वो कहना था ना कि नहीं, आप पूछो प्रश्न का, पेज नंबर बोलो। 406 महाराज, ऊपर में है, बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ, बिल्कुल ऊपर में है, राइट ऑन टॉप। अच्छा, एक मिनट। In 1897 at Lahore, when Lala Hansraj, the leader of Arya Samaj, was defending his orthodox views concerning the Vedas, Swamiji told him, "Sir, you emphasize that there can be only one interpretation of the Vedas, which I consider a kind of fanaticism. I know it helps to spread a sect rapidly. ये वाला सवाल, गुड स्टेटमेंट। Again, a personality cult spreads fast than scriptural dogma." तो ये प्रकार से है, इससे एक पर्सनालिटी कल्ट कर लिया, तो कृष्ण बना लिया, तो कृष्ण के नाम करते करते तो तेजी से प्रेस करेगा। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि अगर ऑर्थोडॉक्स व्यू कर लिया जाए, एक इंटरप्रिटेशन करोगे तो ये दूसरे केवल अद्वैत, बस अद्वैत नहीं मानते और विशिष्टाद्वैत भी नहीं मानते, केवल अद्वैत मानते। तो ये जो है फेनेटिसिज्म है, इससे ये ओके, सो इट इज अब ये कैसे स्प्रेड क्यों करता है, ये सब स्वामी जी जाने हमको। हाँ, आइडिया हम लोग आप बताना मुश्किल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन महाराज ऑन पेज 410, लास्ट बट वन पैराग्राफ में है, while trying to inspire the young Western listeners into renunciation, Swamiji said, "Be living sermons. Renunciation and not talk is the main thing. Then the very sight of you will fill the worldly minded, the wealth-seeking mind with terror." तो मेरा ये सवाल था, ये कैसे होता है? क्या मतलब? अगर एक सन्यासी, why does they renunciate instill fear in the worldly mind? हाँ, ये जैसे सन्यासी, अनागा सन्यासी, पक्के सन्यासी जो होते हैं, हाँ, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल नागा है, एक कमंडलू है बस। हाँ, और वो भिक्षा लेने आते हैं। हाँ, तो बाकी दूसरे जो गृहस्थ लोग हैं वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा, अरे बाप रे, ये कैसा आदमी। यानी जो त्याग का भाव उनके किसी एक पक्के सन्यासी से उत्पन्न होता है, तो जो भोगी हैं उनके बीच में मन में डर नहीं आएगा। हाँ, वो त्याग के भाव से वो घबराते हैं, दैट इज व्हाई। हाँ, त्याग से डरते हैं। हाँ, त्यागी व्यक्ति से डर लगता है सन्यासी गृहस्थ। जी, ठीक है, समझ गया महाराज। दैट्स ऑल महाराज। प्रणाम महाराज। चलो, ये हो गया। अब कौन बचा? बहुत सारे लोग बचे। शिवानी। हाँ, प्रणाम महाराज। महाराज, मेरे और ध्रुव के दोनों के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 404, वेयर इज दिस बारानगर मठ सिचुएटेड? कलकत्ता में है। अच्छा, बरानगर नाम का वो है, अपने मोहल्ला है पास, काशीपुर के पास ही है। हाँ, ठीक है महाराज। सेकेंड क्वेश्चन पेज 405, व्हाई डिड स्वामी जी यूज दिस टर्म फैशन मॉन्की?
मैं ऐसे फैशन यानी क्या है, माई सेल्फ फैशन क्या है, कहाँ है, पढ़ो पढ़ो, क्या पेज नंबर बोलो तो? 405 में 405 ये ऊपर है, ठीक है, 405 में। शुरू में है, जी बिल्कुल। I have not been able to know even a fraction of his life. Whose life? स्वामी Sri Ramakrishna was हाँ so profound, so great that I have not understood him. Okay? I have not been able to know even a fraction of his life. Do you advise me to fashion a monkey while trying to mold an image of Shiva? यानी शिव, एक आदमी ने शिव की मूर्ति करना लगा, वो मैं शिव जी बनवाता हूँ, और शिव के बदले उसने एक बंदर बना दिया। ये एक कहानी है। इससे ये अच्छा कहावत चली गई है कि शिव जी को, यानी किसी को व्यक्ति को वर्णन करने, ठाकुर का वर्णन करने गया तो ठाकुर का वर्णन करने बदले और किसी चीज का वर्णन, ठाकुर को मैं ठीक ठीक बता नहीं सका, और उसके बदले मैंने कैसा एक व्यक्ति का वर्णन कर दिया जो भिन्न प्रकार, यानी अच्छा उसका उल्टा ना हो जाए। ये क्या है, कहावत हो गई। अच्छा ठीक है। यानी मतलब ये है कि शिव जी शिव को बनाने के बदले एक बंदर बन गया, और ह्यूमर्स। रामकृष्ण को समझाने के बदले और कुछ बन गया। ये बात। अच्छा ठीक है। Maharaj, my question is page 410, second last paragraph. How to do this sacrifice and save the world? In whole page they have mentioned this again and again, especially in last second paragraph. God never do great. The what kind of Last, sacrifice they are last but talking? one paragraph. Hanji, second last. क्या है? हाँ, lay down your life, make yourself servant of humanity, be living servants. This is not talk. This and not talk is renunciation. Stand up and strike. तो question क्या है तुम्हारा? The very side. How to do this sacrifice and save the world? अरे त्याग करना है, और क्या? भगवान के लिए सर्वस्व त्याग, संन्यास बनो। रिनाउंसिएशन लिख दिया ना। रिनंसिएशन है ना, और क्या? अच्छा सन्यासी, सन्यास बनना है, अंदर बाहर पूरा सन्यास। इसमें अच्छा हाउ का मतलब क्या है? सन्यास, सारा भारत जो है वो सन्यासी से भरा हुआ, सभी संप्रदायों में है, जैन संप्रदाय सन्यासी हैं। त्याग करना है, और क्या करना? कामिनी कंचन त्याग करना है। ठीक है चलो, हो ठीक है। गया। हाँ प्रणाम महाराज। रीता विश्वास, रीता विश्वास। Pranam Swami ji. यस, My first question is chapter 21, page 399, para 2, describing Swami Sarananda writing Lila Prasanga in the midst of hectic surroundings. The author quotes Gita verse, chapter 4, 18th verse. He who finds action in inaction and inaction in action, he is a perfect yogi. What is inaction? Is it mental, physical, or intellectual? वो ये डिस्क्रिप्शन है, श्री कृष्ण इज सिटिंग ऑन द chariot Yes, and he is not doing anything, yes, inaction, yes, and he is conducting the whole of the war. yes, Swamiji. This is action. Yes. Then the second question is it mental, physical, or intellectual? No, it is mainly intellectual thing. You know, Yes, intense activity, you know, it is a fundamental thing, you know, spiritual life. yes, You are sitting quietly, yes, and mind is intensely concentrated. yes, Intense concentration of the mind, yes, first. Secondly,
Sri Krishna is fighting. यहाँ तो क्या sitting है in there, वो, but he will be fighting. But inside is absolutely calm. Oh, And yes. second point, third point, opposite is the worldly people. Worldly people are sitting quietly, but inside the mind there is a war going on. Yes, yes, Swamiji. That is what it is. Then you have explained, I had asked to explain term inaction and how there is, you have explained. Kindly explain the term inaction and how there is action in inaction. And Well, that is inaction, what I said, the active and yes, inactive. yes. Yes, this question is complete now. Question महाराज 2. इस सिलसिले में मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ महाराज जी। श्री कृष्ण भगवान ने चैरियट पर बैठे थे, उनका हाथ पर सब शांत बैठे थे, लेकिन अंदर अंदर में तो एक्शन चल ही रहा था। तो वही तो बात हो रही है यहाँ पे, ये that is what is being told. तो अभी आपने बताया कि वर्ल्डली आदमी का जो है Oh, अंदर but अंदर that action was not restlessness. अच्छा Different from restlessness. चलो जी सही महाराज है. जी महाराज Chapter 21, page 399, para 2 end. The author quotes Swami Saradananda. I have told my ears, don't listen to anything that is unnecessary. So my ears are not listening to them. Revered Swami had complete control over his senses, but we do not. How can we practice to close our ears and not listen to unnecessary talks? Yes. I have got earplugs. Apart from that, we can't do anything. No, Swamiji, there must be some exercise by which we can, the ears are instruments. Actually, it is the No, mind. it is not possible. It is not possible. Only after tremendous sadhana it can be done. Nothing otherwise not. Oh, yes, yes. अरे क्वेश्चन में जवाब दे दिया था महाराज ने. Then the third question, chapter 22, page 410, para second end. Swami Vivekananda says, talk not, but let the power of purity, the power of chastity, the power of renunciation emanate from every pore of your body. Kindly explain how to practice these teachings and incorporate them in our japa and worship. No, it cannot be done at the age of 70. I know there is no hope. Remember, it has to be done at the beginning. Throughout the life, you have to lead the life of renunciation. Then only it can happen that your whole being will be full of renunciation. Not otherwise. It is not by japa and meditation. It is the practice of renunciation, practice of purity. But there is no body, mind, and speech. All three must be constantly full of renunciation. Swamiji, there is no hope for us now. We cannot do this. At 70 years of age, nothing is possible. Whatever you can do whatever you can is possible. That's all. Okay, thank you, Swamiji. As a matter of fact, there is another explained thing. You start your life as you are the age of 15 years. Try to do it. Yes. What will happen? For a few days, that intensity will remain. And after that, it will go away. Oh, yes, that is why I asked. That is the unfortunate thing. It remains and then it goes away. Chalo, Satish, wait. Thank you, sir. Satish, wait. जी प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज. Yes. एक मिनट महाराज. My first question.
why was Swamiji reluctant to talk or write about Thakur, whereas even household devotees like Ramchandra had written a book on the life and teaching of Thakur and even gave lectures? Swamiji क्यों reluctant थे? Because he knew much more about Sri Ramakrishna. जी जी थोड़ा सा एक किताब पढ़ लिया, हाँ जी हाँ जी, श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ ली, एक छोटी सी किताब, हमें कॉन्फिडेंस और आ उसके जाता है। बाद में कहा है कि क्या कि आर्टिकल लिख दो रामकृष्ण पे, था लिख दूंगा, मैं लिख दिया मैंने। या थोड़ा सा एक दिन मिल लिया, हाँ मैं मिला हूँ श्री रामकृष्ण के पास में, 10 दिन था साथ में, लिख दो, लिख दिया। कितना जाना है आपने? कुछ भी When नहीं, that एक आना knowledge is less, it is easy to write. When knowledge is more, it is very Right. difficult. जी महाराज, And he only Swami Vivekananda, he said Avatar Varishtha. जी जी So what do you mean? He has already told. Second point is, because instead of writing, it is living the life according to his message is more important. जी महाराज, So he himself said, in place of God, I might make a monkey. right. Yehi kya hai? His humility. I have not understood Ramakrishna. Yes. But what he said was nothing but the message of Sri Ramakrishna. जी महाराज, जी महाराज, यानी आप उनसे लिखवाना चाहते हो जीवनी, अरे उन्होंने जो कंप्लीट वर्क्स हैं स्वामी विवेकानंद के, वो खुद नथिंग बट श्री रामकृष्ण है। राइट महाराज, राइट। अब क्या चाहते हो तुम? जी महाराज, एक ये भी हो सकता है कि ये काम उन्होंने शारदानंद को छोड़ दिया था कि वो शारदानंद जी लिखेंगे। अब जो भी हो तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम दे रहे हो। जी 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 महाराज, वो तो शारदानंद तो है, वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन स्वामी जी की दृष्टि से बोल रहे हैं। जी महाराज। सेकंड क्वेश्चन इसी रिलेटेड महाराज, स्वामी जी repented his condemning materialistic culture of America in his lecture at New York, for Thakur would never have said unpleasant truth. Maharaj, even Thakur was unrelenting in condemning indulgence in lust and gold. What was that temperamental difference between Thakur and Swami in this? No, both of them. Swamiji also, there is no attitudinal difference. स्वामी जी ने भी तो अमेरिका में जाके मटेरियलिस्टिक उसको क्रिटिसाइज किया, जी ठाकुर ने भी गोल्ड काम कांचन को क्रिटिसाइज किया। जी महाराज, लेकिन तो ठाकुर स्वामी जी उनको करना नहीं चाहते थे, कि वो कंडेम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उन लोगों की कल्चर ही ऐसी थी। तो ऐसा तो वो ठाकुर भी क्या हमेशा बोलते रहते थे गृहस्थों को, आज बोलते थे कि तुम काम कांचन में पढ़े हो, काम कांचन में पढ़े हो, ऐसे बोलते थे क्या? जी जी महाराज, वो तो एक आध बार बोल दिया बोल दिया उनको दिलासा देते थे, कोई बात नहीं, आप मन से त्याग करो, बाहर से नहीं त्याग कर सकते तो मन से त्याग करो। Last question, Maharaj. People do not understand the self-surrender sadhana practiced by Girish. Therefore, Sadhanand Maharaj, जो लोग हैं वो समझते नहीं है कि सेल्फ सरेंडर साधना क्या होती है। गरीश ने जो प्रैक्टिस कौन सी साधना कहता है? सेल्फ सरेंडर, शरणागति। बाबा देखो भाई, जी जी तो remember, I can't answer this because I don't practice शरणागति। तो गिरीश चंद्र घोष की शरणागति जैसी चीज बड़ी मुश्किल है, दिखती नहीं। और वैसे तो शरणागति को तो आज रोज सुबह जाते हैं, प्रणाम करते हैं ठाकुर को, तो मेरे कहते हैं इधर प्रूवन, अभी तक जो कुछ किया सब कुछ प्रभु तुम्हारा समर्पण है, और प्रभु मैं तो आप मेरे को चलाना वैसे। जी जी। और हम लोग जब रामकृष्ण मिशन को ज्वाइन किया, जब संन्यास लिया, तो हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया श्री रामकृष्ण को। और यानी ये क्या है, हम सब कुछ कर रहे हैं वो श्री राम के लिए ही कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं है।
जी लेकिन हम अपनी इच्छा से तो कर रहे हैं। जी महाराज। यानी संन्यास के समय हमने अपने आप को पूर्ण रूप से ठाकुर को समर्पित कर दिया। जी अब हम रामकृष्ण मिशन को समर्पित हैं। जी वो उठा के यहाँ से रिटायर कर सकते हैं या दूसरी जगह भेज सकते हैं। इस दृष्टि से तो हमारा पूर्ण समर्पण है। जी महाराज। लेकिन क्या गिरीश चंद्र घोष जैसा हो सकता है क्या? वो तो वो कप लेके पानी पीने के पहले छोड़ते हैं कि ठाकुर का आदेश हुआ कि नहीं। तो महाराज ये उस दृष्टि से तो गिरीश हमारा चंद्र कुछ की भी गिरीश चंद्र महाराज। की जैसी शरणागति हमको नहीं मालूम। जी महाराज। महाराज हम जो लोग करते हैं उस दृष्टि से तो हमारा तो सेल्फ सरेंडर 1% भी नहीं है, फिर तो बस वही तो है, हमें क्या वही तो करना बोल चाहिए? वही हमें तो क्या करना गिरीश चंद्र चाहिए? जैसा करना, गिरीश जैसा करना असंभव। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? सरेंडर तो करना ही है। अब अरे बाबा, अहंकार इतने जबरदस्त चीज है कि बस जो चल रहा है चलने दो, ठाकुर से प्रार्थना करो। ठीक ठीक महाराज। हम्म, ठीक है, चलो। प्रणाम महाराज। ठीक। भुवन मित्तल। हाँ जी। हम्म, महाराज मेरा पहला क्वेश्चन है, ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स में से है। हम्म। Swamiji spoke harshly to the people of New York about their materialistic views, yet he scolded those whom he loved most. Sometimes we also have to behave harshly, which can alienate our family. Any advice to remedy that? Mother, unless we have deep love for the family, our scolding might break the family. Mother scolds the child, but by that family is not alienated. So our love is very superficial in family. Don't scold, quietly live. Okay. Hmm. Yes. If you have to scold, explain, quietly do it. Yes. Yeah. Got it. Okay. And the next, practical Vedanta teaches all beings are God. In serving God, the wicked, how can we make ourselves immune to their influence? So, you see, we go and we have got Rogi Narayana, isn't it? God the sick, isn't it? Yes. Yes. So God the sick, we don't serve sweets, we serve medicine. Hmm. So remember, this is a very important point, that when you are serving Narayana, you must see what Narayana is, what type of Narayana is, and then serve. So once a wicked, what do you mean by wicked? Um, it just means mean, in simple Acha, word, mean. suppose there is a thief, Mhm. thief Narayan. So thief Narayan will have to be caught and put into jail, and he will have to be उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि you are God, you are not वो, you teach him some work so that he leaves the thief quality and becomes a good man. That will be the service of wicked Narayan. Okay. So just by telling, wicked Narayan will not do. Every Narayana has a different type of training, of service. Okay. Hmm? Yes. Is Yes. that okay? Yes, Maharaj ji. Yes. Okay. Thank you.
Pankaj Kumar Sanyal is there? He joined and then he left. I am here, Maharaj. Acha, he is My there. question was same as Namaskar. Satish ji. Pranam, Maharaj. My question Hmm. was same as Satish ji, so I've got the answer. Okay. Oh. Okay. Acha, okay, he has done it. Okay. So we stop here. Everyone done? Sanjay? महाराज शांति मंत्र महाराज जी. Okay, बंद करें. हाँ। शांति मंत्र महाराज जी. ओम ओम शांति 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 हरि हरि ओम ओम राम कृष्णार्पणमस्तु। तो नमस्ते सब लोगों को नमस्ते कर लो भाई। प्रणाम महाराज जी. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. महाराज। निवेदिता नमस्ते। निवेदिता प्रश्न नहीं किया है। हाँ, इस बार नहीं किया। Pranam, Maharaj. Maharaj ji, Pankaj Sanyal, हाँ, Maharaj, Pankaj Sanyal is our latest entrant into our Zoom meeting, Maharaj. yes, yes. Ah. ये ना? हाँ, हाँ. okay. Pranam, Pranam. Maharaj. नमस्ते नमस्ते माँ Very नमस्ते। sincere Pranam, devotee. Maharaj. Pranam, Maharaj. ये ना पंकज सन्याल पहले हाँ, आज हाँ, पहली महाराज। बार आए Pranam, थे। Maharaj. ठीक, नमस्कार। सतीश विग नमस्ते। Pranam, Maharaj. और तुम्हारी कार पहुंच गई क्या? हमेशा तुम कार में रहते जी महाराज। महाराज आप उसको मना करिए, जूम मीटिंग सुनते सुनते कार चलाता है। कार के भी गुलाम है।